یہ کہانی ہے ہیر رانجھے کی، ایک ایسی محبت کی داستان جو صدیوں سے دلوں میں زندہ ہے۔ پنجاب کی سبز وادیوں اور دریاؤں کے بیچ جنم لینے والی یہ کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں کو چھو جاتی ہے۔ دریا کے کنارے خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پانی کی روانی اپنی دھن سنا رہی تھی۔ اسی لمحے ہیر مٹکا لیے دریا سے پانی بھرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد رانجھا اپنی بانسری کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس کی دھن نے ماحول کو مسحور کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا جب شروعات ہونے والی تھی، ایک ایسی محبت کی داستان کی جو صدیوں بعد بھی دلوں پر راج کرتی ہے۔ ہیر بانسری کی دھن سن کر چونک گئی، اس کی نظریں پہلی بار رانجھے پر ٹک گئیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب محبت کے بیج دلوں میں پڑنے لگے، فضا میں خاموشی اور کشش پھیل گئی۔ رانجھا دھیرے دھیرے آگے بڑھا، اس کی نگاہ پہلی بار ہیر سے ملی۔ لمحہ بھر کو وقت ٹھہر گیا، دریا کی لہروں کی سرسراہٹ اور بانسری کی دھن جیسے خاموش ہو گئی ہو۔ رانجھا نرمی سے بولا، تم یہاں اکثر آتی ہو؟ ہیر نے مٹکا سنبھالتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، یہ میرا روز کا معمول ہے۔ یوں ان دونوں کے درمیان پہلی بات نے ایک نئی داستان کی بنیاد رکھ دی۔ جب رانجھا اپنی بانسری کے سروں کو چھیڑتا تو پوری فضا میں ایک عجیب سی جادوئی کیفیت پھیل جاتی۔ ہیر اس دھن میں کھو جاتی جیسے یہ دھن صرف اس کے دل کے لیے بنی ہو۔ وہ لمحے، وہ خاموشی، وہ مسکراہٹیں، یہی سب ان کی محبت کی پہچان بنتے جا رہے تھے۔ مہینوں گزر گئے تھے ہیر اور رانجھے کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، کبھی کھیتوں کی پگڈنڈی پر، کبھی دریا کے کنارے اور کبھی گاؤں کی راہوں میں۔ وقت نے ان کے رشتے کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ اب یہ محبت کسی پہلی نظر کی کشش نہ رہی، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو دل سے دل تک جلتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی محبت اپنے عروج پر تھی، جہاں ہر لمحہ ایک خواب اور ہر ملاقات تقدیر کا تحفہ لگتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے گئے۔ رانجھے اور ہیر کی محبت اب صرف ملاقاتوں تک محدود نہ رہی تھی۔ یہ محبت کا پہلا نہیں بلکہ محبت کے عروج کا ستارہ تھا۔ گاؤں والے بھی ان کے رشتے کو دیکھ کر حیران رہتے، مگر ان دونوں کے دلوں میں بس ایک ہی بات تھی، ایک دوسرے کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہیر اور رانجھے کی محبت اپنے عروج پر پہنچ گئی، لیکن ہر محبت کے سفر میں امتحان بھی آتے ہیں۔ ہیر کے گھر والے اس رشتے کو قبول کرنے پر راضی نہ تھے۔ گاؤں میں سرگوشیاں ہونے لگی اور محبت کے راستے میں پہلی بار رکاوٹ کھڑی ہوئی۔ یہ ہے چوچک سیال، ہیر کے والد، اپنی حویلی کے وسیع صحن میں بیٹھے ہوئے۔ چوچک اپنی بیٹی کی عزت اور خاندان کی ناموس کو سب سے بڑھ کر مانتے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھا ہے کیدو، ہیر کا بھائی، جس کے دل میں رانجھے کے خلاف نفرت اور حسد دن بدن بڑھ رہا تھا۔ کیدو کی نظریں سخت اور تیز تھیں، جیسے موقع ملتے ہی وہ رانجھے کو نیچا دکھانا چاہتا ہو۔ گاؤں کے بیچ پیپل کے پیڑ تلے پنچایت سجائی گئی۔ بزرگ چارپائیوں پر بیٹھے تھے اور سب لوگ حیرانی اور غصے کے ساتھ جمع تھے۔ ہیر کے بھائیوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ ٹھیک نہیں کہ رانجھا روز ہمارے گاؤں آئے، ہیر سے ملاقات کرے، یہ بات ہمارے خاندان کی عزت کے خلاف ہے۔ کیدو نے بھی موقع دیکھ کر آگ میں تیل ڈالا، یہ سب ہماری بدنامی کا سبب بنے گا، اب فیصلہ ہونا چاہیے۔ گاؤں والے سر ہلا ہلا کر ان باتوں کی تائید کرنے لگے۔ فضا میں سنجیدگی اور غصے کی لہر دوڑ گئی، جیسے اب کوئی بڑا فیصلہ سننے ہی والا ہے۔ گاؤں کی پنچایت میں سب بزرگ اور لوگ اکٹھے بیٹھے تھے۔ کیدو غصے میں کھڑا ہوا اور بولا، یہ رانجھا روز ہمارے کھیتوں میں آتا ہے، ہیر سے باتیں کرتا ہے، یہ عزت کی بات نہیں۔ ہیر کے بھائی بھی آگے بڑھے اور بولے، ہمیں اپنی بہن کی عزت سب سے بڑھ کر ہے، ہم یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گے۔ چوچک، ہیر کا باپ، خاموش مگر پریشان بیٹھا رہا۔ پنچایت کے بڑے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ پھر ایک بزرگ نے فیصلہ سنایا، یہ رشتہ ہماری برادری کے حق میں اچھا نہیں، ہیر کی شادی سدو کھیڑے سے ہی ہوگی۔ یہ اعلان سنتے ہی رانجھے کے چہرے پر صدمہ اور ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گاؤں والوں کی نظریں جھک گئیں، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ فیصلہ سننے کے بعد رانجھا ٹوٹ سا گیا۔ اس کی بانسری خاموش ہے، دل میں طوفان ہے اور آنکھوں میں صدیوں کا دکھ۔ وہ درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہے، کیا محبت کا یہی انجام ہوتا ہے؟ رانجھے کی خاموشی گاؤں کی گلیوں تک سنائی دیتی ہے۔ دوسری طرف ہیر کی دنیا اجڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دل کا حال بیان کر رہے تھے۔ وہ سوچتی رہی، کیا میرا دل، میرا اختیار کسی کو نظر نہیں آتا؟ کیا محبت کا حق صرف سزا ہے؟ ہیر کے آنسو زمین پر گرتے
और सदियों की उदासी को जन्म देते। पंचायत का फैसला रांझे और हेर के लिए सदमा था, मगर रांझे ने हार ना मानी। उसने सोचा कि अगर वो हेर के करीब रहना चाहता है तो उसे अपना रूप बदलना होगा। यूं रांझा अपने शाहाना लिबास छोड़कर मजदूर बन गया। अब वो खेतों में काम करता, ईंट पत्थर ढोता और गांव वालों के बीच रहता। इसी बहाने वो हेर के घर भी पहुंचने लगा ताकि उसके करीब रह सके। मोहब्बत के इस सफर ने रांझे को राही से मजदूर बना दिया, मगर हेर की कुर्बत के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार था। रांझा ने अपने दिल की मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी शक्ल और शान छोड़ दी। वो अब एक आम मजदूर के रूप में हीर के घर में नौकरी करने लगा। सुबह से शाम तक वो भैंसों को चारा डालता, पानी भर कर लाता और खेतों में मजदूरों के साथ पसीना बहाता। मगर उसकी आंखों में हमेशा हीर का अक्स बसा रहता। हीर भी चुपके चुपके झरोके से रांझे को देखती और दिल ही दिल में मुस्कुरा देती। यूं उनकी मोहब्बत का रिश्ता और गहरा होने लगा। हीर की नजर हर लम्हा रांझे पर रहती, मगर दिल में एक खौफ भी था, क्योंकि गांव की पंचायत तो पहले ही फैसला दे चुकी थी। हीर की शादी सद्दू खेड़े से होगी। अब इनकी मोहब्बत छुप कर सांस ले रही थी और कैदू की नजर हर पल इन पर जमी हुई थी। कैदों ने सब बर्दाश्त कर लिया, मगर अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो सीधा अपने वालिदैन के पास गया और बोला, रांझा हर रोज हीर से मिलता है। वो गांव की इज्जत को मट्टी में मिला रहा है। अगर अब भी कुछ न किया गया तो सब लोग उंगलियां उठाएंगे। चोचक के चेहरे पर संजीदगी छा गई। मालिकी की आंखों में फिक्र उतर आई। घर की फजा बोझल हो गई। फैसला होना तय था। कैदू की कही बात अब सिर्फ एक घर की हद तक नहीं रही थी। ये खबर गांव भर में फैल गई। लोग गलियों और चौपाल में सरगोशियां करने लगे। हर किसी के चेहरे पर हैरत और गुस्सा झलक रहा था। सब यही कह रहे थे, ये मामला छुपाने का नहीं, अब इस पर फैसला होना ही चाहिए। कैदू की बातों के बाद सब ने फैसला सुनाया। हीर की शादी सैदू खेड़े से होगी। ये ऐलान सुनकर महफिल में खसर फसर होने लगी, मगर फैसला हो चुका था। ये फैसला सुनकर रांझे का दिल टूट गया। वो अकेला जंगल की तरफ निकल गया। चांदनी रात में दरख्त के साए तले बैठकर अपनी बांसुरी को खामोशी से तकने लगा। आंखों में नमी थी और दिल में ये सवाल, क्या सच्ची मोहब्बत का अंजाम यही है? हमसे नढाल रांझा दुनिया से दिल बर्दाश्ता हो गया। उसने अपनी मोहब्बत का दुख सहने के लिए जोगी बनने का फैसला किया। वो बाबा गोरखनाथ के आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने कान छदवाकर सबके सामने ऐलान किया कि अब वो दुनिया को छोड़ चुका है। जोगी का रूप धारे रांझा गांव गांव भटकता रहा। उसके कंधे पर ओटली थी, हाथ में छोटी सी छड़ी। कदमों में थकन जरूर थी, मगर दिल में एक ही तड़प बाकी थी, हीर को एक बार फिर देखने की। चलते चलते वो आहिस्ता आहिस्ता उस गांव के करीब पहुंच गया जहां हीर की शादी हो चुकी थी। उधर हीर अब सद्दू खेड़े के गांव में थी। बड़ी हवेली, ऊंची दीवारें, तरो दीवार पर रंगो रोगन जरूर था, मगर हीर के दिल की वीरानी कोई ना मिटा सका। वो महल नमा घर में रहती जरूर थी, मगर उसकी आंखों में अब भी रांझे की याद बसी हुई थी। वक्त गुजर चुका था, मगर दिलों की धड़कनें वही थीं। हीर अपनी नई हवेली के झरोके में खड़ी थी। उसकी आंखों में उदासी और यादों की रोशनी थी। दूर कहीं रास्ते पर जोगी के भेस में रांझा खड़ा था। दोनों की नजरें मिली और पल भर को जमाना ठहर सा गया। लम्हे भर को वक्त जैसे रुक गया। हीर के दिल की धड़कन तेज हो गई और रांझे की आंखों में पुरानी मोहब्बत की चमक लौट आई। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश रहे, मगर उनकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। मोहब्बत जो पंचायत के फैसले, दूरियों और जमाने की दीवारों के बावजूद जिंदा थी, आज फिर आंखों के इशारों में बोल उठी। रात के सन्नाटे में हीर सहती के साथ छुपकर हवेली से निकली। दरख्तों के साए में जोगी के रूप में रांझा मुंतजिर खड़ा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वक्त थम सा गया। हीर की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ थे और रांझे के लबों पर दुख और मोहब्बत की मिली जुली मुस्कुराहट। वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। सहती पहरा देती रही और इन लम्हों में सिर्फ इनकी धड़कनें सुनाई देती थी, मगर खतरा भी अब पहले से ज्यादा था। मगर उस लम्हे की खामोशी को किसी की नजर ने तोड़ दिया। ये कैदू था जो सब कुछ छुप कर देख रहा था। उसके दिल में आग भड़क उठी। वो दौड़कर घर गया और सब कुछ माँ बाप को बता दिया। ये वो पल था जहां मोहब्बत के रास्ते में नफरत और साजिश का तूफान खड़ा होने वाला था।
कैदों की बात सुनते ही हीर के घर में हलचल मच गई। माँ बाप और भाइयों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए। उन्होंने कहा, ये हमारी इज्जत का सवाल है, ये बात अब गांव के बड़ों तक पहुंचानी होगी। यूं फैसला हुआ कि अगले दिन फिर से सब बुजुर्ग और गांव वाले इकट्ठे होंगे और हीर और रांझे के ताल्लुक पर हतमी बात होगी। ये वो घड़ी थी जिसने हीर और रांझे की मोहब्बत को एक नए इम्तिहान के दहाने पर ला खड़ा किया। गांव की पंचायत एक बार फिर इकट्ठी हुई। कैदू और हेर के भाई गुस्से से भरे खड़े थे। उन्होंने कहा, ये रिश्ता हमारी इज्जत के खिलाफ है, हम इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। पंचायत के बड़े आपस में सरगोशियां करते रहे और आखिरकार फैसला सुनाया, हेर की जगह उसके शौहर सद्दू के साथ है, रांझे का यहाँ कोई हक नहीं। ये फैसला सुनकर रांझा अंदर से टूट गया और हेर की आंखों में फिर से आंसू छलक पड़े। कायदो गुस्से में चीखकर बोला, ये लड़की अब भी रांझे से मिलती है, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। हीर की माँ मालकी ने रोते हुए कहा, बेटी तूने हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। हीर का बाप चोचक सख्त लहजे में बोला, अब बहुत हो चुका, हीर को अपनी ससुराल में ही रहना होगा। हीर खामोश आंसू बहाती रही। मोहब्बत की मासूमियत पर इल्जामों का बोझ था, मगर उसकी आंखों में अब भी रांझे की सूरत बसी हुई थी। हीर के घर में फिजा बदल गई थी। कैदू की शिकायत के बाद माँ बाप और भाई सख्त हो गए। हीर को अब आजादी नहीं थी। दरवाजे पर पहरा, सहन में कड़ी नजर। वो अपनी मोहब्बत के गम में कैद हो गई थी। आंसू उसकी आंखों से बहते, मगर दिल में रांझे का इंतजार और भी बढ़ता गया। रांझा अब गांव के बाहर तन्हा जोगी के रूप में भटकता था। बांसुरी हाथ में थी, मगर उसके लब खामोश थे। आंखों में आंसू, दिल में टूटा हुआ सुकून। वो आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, ऐ रब, मुझे मेरी हीर की एक झलक दे दे। जोगी के भेस में रांझा गांव-गांव घूमता रहा। बिलाखिर वो सद्दू खेड़े के घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। लोगों ने उसे बस एक फकीर समझा, मगर हेर की निगाहें फौरन पहचान गई। झरोके से देखते ही उसका दिल लरज उठा। वो लम्हा फिर लौट आया था, रांझे और हेर की मोहब्बत का लम्हा। इस पहली झलक के बाद रांझा और हीर के दिलों को करार न आया। रांझा बोला, हीर, अब ये मुलाकातें यहीं छुप छुप के ना होंगी, हम फिर मिलेंगे, खुल के अपने दुख दर्द कहेंगे। दोनों ने अगली मुलाकात का वादा किया, मगर उन्हें क्या खबर कि किस्मत ने पहले ही उन पर पहरा बिठा रखा है। आखिरकार हीर और रांझा ने एक बार फिर मिलने का इरादा किया। ये जानते हुए भी कि हर तरफ पहरे हैं, उनके दिलों ने हार न मानी। रात की खामोशी में दरख्तों की छांव तले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई। मोहब्बत के वादे, दुख भरी बातें और एक दूसरे की कुर्बत में डूबे वो लम्हे, मगर किस्मत के तीरों से बच न सके। कैदों ने सबको खबर दी और दुश्मन आ पहुंचे। वो लम्हा जो मोहब्बत की जीत होना था, अलमिया अंजाम में बदल गया। यूं वो लम्हा आ ही गया जिससे दोनों डरते थे। हीर और रांझा को बेरहमी से मार दिया गया, मगर मरने के बाद भी वो एक दूसरे से जुदा न हो सके। मोहब्बत के ये दीवाने जिस्म की कैद से आजाद हो गए और अमर हो गए। सदियां गुजर गई, मगर इनकी मोहब्बत आज भी पंजाब की मिट्टी में सांस लेती है।